84 उस दिन सवेरे 8 बजे करीब है एक लेडी ने बाहर आग लगाई। वो बस वो आग लगाते सारी 2-3 घंटे पूरी बिल्डिंग आग लगनी शुरू हो गई और 6 दिन आग लगी रही और 6 दिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लेता। 6वें दिन फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने थोड़ा पानी पाया और फायर मेडिकल चले गए, बुझा भी नहीं पाए। और इन्नी अग्गां लगियां, कई दे घर बर्बाद होए, लेकिन कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया गया। आज इन्ने साल होने बाद 84 16 और 22 के 38 साल हो गए, एक पैसा नहीं गवर्नमेंट दे सके। SIT की पूरी टीम ने अनवरत 3 वर्षों तक परिश्रम करके इसमें 11 केस को वर्कआउट किया है। इसमें हमारे 96 अभियुक्त जो है प्रकाश में आए, इसमें से 23 की डेथ हो गई है, 73 जीवित हैं। 73 में 22 हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी हमको 51 और गिरफ्तार करने बाकी है। नुकसान तो दुकाना भी लुटी गई, यहाँ से घर भी लुटिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर ਵਿੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। SIT ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 96 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 96 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 22 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ 51 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸਿੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। SIT ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲੇਂਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1984 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ SIT ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ FIR ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 1984 ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੱਕ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ 84 ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? 84 उस दिन सवेरे 8 बजे करीब है एक लेडी ने बाहर आग लगाई। वो बस वो आग लगाते सारी 2-3 घंटे पूरी बिल्डिंग आग लगनी शुरू हो गई और 6 दिन आग लगी रही और 6 दिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 6वें दिन फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने थोड़ा पानी पाया और फायर मेडिकल चले गए, बुझा भी नहीं पाए। मतलब सिर्फ नाटकबाजी शुरू की थी। उस टाइम देखा सामने किस तरह फायर ब्रिगेड की गड्डियां लुट के माल लैके जा रहे थे। नाल दी दुकान एक शिल्प हैगी, वो सामने सारे थान कपड़े दे लैके गए, कोई एक्शन नहीं रह रहा। DM तक कुछ नहीं एक्शन ले रहा सी। मतलब NC जिस मतलब जो है लुट के लै जाओ। मतलब पीछे दुकान की छाबड़ा लोग पंखे लैके जा रहे, फ्रिज लैके जा रहे, कोई पकड़ वाला नहीं सी। मतलब पूरी छूट कांग्रेस स्टैंड सी। अगर कांग्रेस चाहती है कुछ ना होना, लेकिन उन्होंने सब अपने सामने काम कराया। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
और इन्नी अग्गां लगियां, कईयां दे घर बर्बाद होए, लेकिन कोई उन्हां दा एक्शन नहीं लिया गया। अज इन्ने साल होने के बाद 84 16 और 22 कि 38 साल हो गए, एक पैसा नहीं गवर्नमेंट दे सके, किसी को बजट नहीं कि खर्चा देखने के बाद भी रंगना मिशन है एक साफ सा लिखे सी 100% लॉस है, अपना लैटर राइटिंग पैड देता सी तां भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो कॉपी भी मेरे को है। हाँ, यह तो बहुत अच्छी गल है, देर रात दुरुस्त है, अच्छी गल है, होना चाहिए कोई एक्शन कि उन्होंने भी सज़ा मिलनी चाहिए, जो गलत काम करे उन्हें सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। नहीं, इन्हें बड़ी मेहनत की है, पुलिस साहब ने मेहनत की है, फल है जैसी सब कुछ हो रहा है जो देख रहे हो तुम अज मेरे को सब सामने आके गलबात कर रहे हो, सब पुलिस साहब की मेहरबानी है जो उन्होंने बड़ी मेहनत की है और अपने टाइम की उन्हें परवाह नहीं की, इतने आके सब की सेवा ही लगे हुए हैं। वर्ष 84 में कानपुर नगर में हुए सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए SIT उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में स्थापित हुई थी। SIT की पूरी टीम ने अनवरत 3 वर्षों तक परिश्रम करके इसमें 11 केस को वर्कआउट किया है। इसमें हमारे 96 अभियुक्त जो है प्रकाश में आए, इसमें से 23 की डेथ हो गई है, 73 जीवित हैं। 73 में 22 हम लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया है, अभी हमको 51 और गिरफ़्तार करने बाकी हैं। अब हमारा सितंबर तक का टाइम है गवर्नमेंट द्वारा, मैं प्रयास करूंगा कि इस टाइम में ही सबकी हो जाए गिरफ्तारी और जिन मुकदमों में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। इसके बाद मेरा प्रयास ये होगा कि जो मुकदमे पहले लोगों ने रुचि नहीं दिखाई या किसी कारणवश गवाही वगैरह नहीं दिए, उनसे एक बार फिर संपर्क किया जाएगा। इस समय लोगों के अंदर उत्साह है जब से गिरफ्तारी हुई है, अगर उसमें भी हमको प्रॉपर गवाही मिलेगी तो हम उस केस को भी चालू करेंगे। तो सर पहले ऐसे होता था, फाइलें गुम हो जाती थी, पहले चूहे खा जाते थे, ऐसे तरीके के बहाने होते थे। अब SIT बनी है तो अब आपने काम किया, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, तो सिखों को किस तरीके का सहयोग आप देखते हैं? सारा सहयोग सिखों का ही है। हमारे भूगल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील साहब श्री प्रसून जी हैं, और यहाँ कानपुर के जितने भी सरदार भाई हैं, पम्मी भाई हैं, ये हैं मोकम सिंह साहब, और सभी लोग जो है, काफ़ी लोगों मैं नाम नहीं जो कर पा रहा हूँ, इन सब लोगों का बहुत सहयोग रहा गवाही कराने में भी, और दबिश के टीम के लिए जो है वाहन वगैरह उपलब्ध कराने में काफ़ी सहयोग रहा। सर 2 नाम बड़े भी आ रहे हैं, जो मिनिस्टर लेवल के जो लोग रहे हैं, वो तो उनको भी गिरफ्तारी करने नहीं, मिनिस्टर लेवल के जो लोग थे वो कोई किसी का नाम प्रकाश में नहीं आया है, न किसी ने नाम लिया है। अब अंदर खाने भले उनका रहा हो, लेकिन उनके लोग थे, और उनके लोग जो थे घटना करने में वो सब प्रकाश में आ चुके हैं। दोषी तो सर वो भी माने जाएंगे ना, लोग अगर उनके हैं तो अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो आप करेंगे पहल कभी? नहीं, अगर लोग बयान दिए होते कि मिनिस्टर साहब का भी हाथ है तो उनको भी बना दिया जाता, लेकिन अब उन लोगों की तो ड्रेस हो चुकी है ना। कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं है जिनके जो है यहाँ जो एलाइव हो, जो भी रहे उस समय उनकी डेथ हो गई है। पूरे जिस तरीके से चल रही है, अभी 22 तो हो गए हमारे, अभी ये जुलाई में काफ़ी दिन है, तो जुलाई में ही हम इसको 70-75% ले जाएंगे, और जो गायब रहेंगे कुछ दिन के लिए उनकी फिर कुर्की वगैरह शुरू कराएंगे। प्रशासन की क्या, शासन की तरफ से निर्देश है हमको, जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध थे वैसे अपराधों में जिनमें उस समय चार्जशीट लग गई हो, उनका परीक्षण कर लिया जाए उनके जजमेंट का, और जिसमें अपील लायक पर्याप्त आधार हो उनको अपील के लिए रिकमेंड किया जाए। तो ऐसे ही 11 केस थे जो उस समय चार्जशीट लगे थे, जिसमें न्यायालय द्वारा विचारण करके सभी केस छूट गए थे। उन सब केसों का अध्ययन किया गया जो हमारे विधि विशेषज्ञों की टीम ने किया। यहाँ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं और रिटायर्ड एडी प्रोसिक्यूशन भी हैं, और ज़िले के भी एडी प्रोसिक्यूशन और SPO लगाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कानूनी राय मशविरा देने के लिए। तो उन लोगों ने 5 मामलों को जो है अपील के लायक पाया, जिसमें से एक मामले में ऑलरेडी पार्टी ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील कर रखा है। शेष 4 मामले जो है अपील के लिए हम लोगों ने शासन को भेज दिया है, वहाँ से अनुमति प्राप्त होते ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील कर दी जाएगी। और उसके बाद 29 केस जो फाइनल रिपोर्ट वाले थे उनकी पहले हमने प्रारंभिक जांच कराया, और जिसमें लोगों ने गवाही दिया, जिसमें FIR मिल गई,
मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह मिल गया, मेडिकल वगैरह मिल गया, उसमें हमने जो है विवेचना 20 केसों में न्यायालय से अनुमति लेकर प्रारंभ किया और 20 में हम 11 में चार्जशीट के करीब हैं। उसमें हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसमें हमने 23 लोगों का 164 का बयान भी माननीय न्यायालय में कराया है और ये सब कार्रवाई ठोस हो रही है। इसमें कोई अभियुक्त जो अंदर जा रहे हैं वो जल्दी निकल नहीं पाएंगे। सर नुकसान तो दुकाना भी लुटी गई जी, घर भी लुटिया गया। परिवार के 7 मैंबर है, 4 भरा जी छोटे ते माता जी पिता जी सिस्टर। पूरा हजूम जी ये लोग तो सवेरे सवेरे गए फिर बात फेरी वास्ते पूछने वास्ते 1 तरीक तो कहना आज फिर बात फेरी नहीं निकलेगी। तो उस तो बाद हमारा केस स्नान किया, सब ने किया। ये सवेरे 4 बजे हमला तो होया 8 बजे 9 बजे नाल 9 साढ़े 9 बजे नाल हमला हो। दुकाना तो लुटिया गई। दुकान मेरी एक है, दुकान से एक पिपल थले दुकान से 2 दुकान सी। ये तो पिता जी सी भाई, वो जद जड़े सी वो तो सब बाहर से, इतने तो हूँ लोकल ही आन कोई मंजर तो उन्होंने भाई साहब आ रहे छोटे वाले पूरा नज़ारा तो उन्होंने कोल है क्यों उत्थे भाई साहब ही रहिंदे सी। मैं तो इत्थे दर्शनपुरा रहिंदा ही नाल। भी जी गिरफ्तार हो रहे हैं तो उन्होंने उम्र कितनी 80 साल की उम्र आ रही हैं, 84 साल की किसी की आ रही है, पर किसी 68 साल की हो रही है। नींद तो खत्म हो ही गई तो उनसे गिरफ्तारी बहुत लेट किया इन्होंने, थोड़ा लेट नहीं किया, बहुत लेट किया। फिर 50 साल मैंने रखा, 50 साल निकल गया, 45 साल 48 साल हो गए खाते हैं। 38 साल हो गए तो 38 साल कितने बंदा पहुँच जाता, असी कितने पहुँच गए। असी अपने बच्चे ब्याह चुके हम, उसे छोटे छोटे न्याणे से बिल्कुल। देखो सरदार महेंद्र सिंह दे अखां च अज भी वो अथरू, मैं भी रोन पै गया क्योंकि ये जो कुछ होया लेट होया। मैं ते असी ते 38 साल तो लड़ाई लड़ते सी, मगर यूपी दे विच ये लेट होया। पहले सरकारां रहियां कांग्रेस दियां, उस तो बाद बसपा की सरकार रही, उस तो बाद मुलायम सिंह यादव की रही। असी सब दे दरवाजे खटखटाए मगर किसी ने सुनी नहीं। जब ये सरकार आई इन्होंने सुनी और राजनाथ ने SIT बनाई और अज अमित शाह ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक काम किया। मैनू इस गल की खुशी है कि अज मैं जिथे जिथे जा रहा ये सारे वीर जोड़े है, खालसा जी हो गए, पम्मी जी हो गए, लक्की जी हो गए, लाडी जी हो गए, परसुन कुमार जी हो गए। असी ये टीम लैके इत्थे आए हैं। असी जेड़े जेड़े बंदियां दे लोग मर गए असी उत्थे जांदे पिया और सच्चे पातशाह अगे यही अरदास करते पे असी कि असी जिहड़ी लड़ाई लड़ी उहदे च सानू सफलता मिली है और अगे भी सफलता मिलेगी, क्योंकि जिहड़े लोगों के दिलों ते वो जख्म न वो करोदे जा रहे। जब असी जब प्रेस जाती है ना, अज इन्हों ये होया कि अज जख्मां ते मरहम लगती है, वो लोग जा रहे हैं। ये कहते 70 साल दे हो गए, 80 साल दे हो गए। 77 साल का सज्जन कुमार गया ना अंदर जी, उहदे नाल 15 बंदे होर गए। अज इत्थे इसी तरह किसी ने सोचा नहीं सी इत्थे किहड़े बंदे सी, किहड़े बंदे सी। असी जाके RTI विच गए, RTI दे विच जाके सानू 34 बंदियां दे नाम मिले। अज 34 दे 70 हो गए। क्यों हो गए? जब असी पंजाब दे अपने अमृतसर गए, जलंधर गए, लुधियाना गए, उस तो बाद मोहाली गए, जबलपुर गए, इन्हां सारियां जगह ते गए। जिथे 2 गवाह सी उत्थे 4-4 गवाह हो गए। उहदे नाल जिहड़ी ये रेशो सी वो 70 हो गई। अज असी अपने बलंदू भूषण जी जेड़े SIT दे DIP न, उन्होंने कहा
ਕਿ ਸਤੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 31 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਮ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀਏ ਉਹਨੂੰ CM ਨੂੰ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਵਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, 7 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨਪੁਰ, ਬੁਖਾਰੋ, ਚਾਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ हैं, FIR और फाइलें मिल नहीं रही हैं, ये जो थाना है ये बदल गया है। देखो कांग्रेस की सरकार रही है, असी तद आए, बसपा की सरकार रही तद आए, सापा की सरकार रही तद आए, किसी ने साड़ा हथ नहीं फड़िया, हथ इन्होंने नहीं फड़िया, हथ फड़िया नरेंद्र मोदी ने। जब गुरु नानक देव महाराज के 550 साल से मैं उत्थे गया, मैनू भी चिट्ठी आई सी, असी गए, मैं उन्होंने आवाज़ दी, मोदी साहब एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। कहने बोलो। मैंने कहा ऐसे हमने जो कानपुर में लोग हैं हमारे पास सबूत आ गए हैं, 34 लोग उसमें गुनहगार हैं, अब आप वहाँ SIT लागू करवाओ। राजनाथ का मैं धन्यवाद करता हूँ, उस टाइम गृह मंत्री सी, उन्होंने SIT का गठन किया। उस तो बाद अमित शाह नूं कह के ते योगी नूं कह के अज लोग जिहड़ी जेल दियां सलाखां जा रहे। खुशी मैनूं इस गल दी है कि 34 तो 70 होए, 70 दे विच कुछ मर गए हैं, 22 मरे हैगे। मैनूं ये उम्मीद है कि 45-50 की रेशो दे विच वो बंदे आएंगे, वो अंदर जाएंगे, सलाखां जाए, उन्होंने कोई वो अंदर ही मरनगे। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ 70-75 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੱਲੇ ਫੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਅੱਜ 22 ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਰੇਸ਼ੇ 50 ਹੋਏਗੀ। मैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह करता हूँ। हाँ जी, सन 84। मेरा नाम अवतार सिंह। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? 1/11/1984 ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਜੂਮ ਆਇਆ। ਹਜੂਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਘੇਰਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜੀ। ਖਿੜਕੀ ਤੋੜਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਸੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਕੁੱਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। 4 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਦੇ, 4 ਭਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੇਟ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਜੋ ਲੁੱਟਣਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਕਣ ਛੁਪੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। और मैंने भी लगे, मैं भी चित हो गया कि मैंने गुरु तेग बहादुर साहब की फ़ोटो नज़र आई। उस तो बाद मैं बचाव मेरा हो गया। उस तो बाद मैं पिता ही कहने लगा तू इतों निकल जा, उन कोई बचाव का हिसाब नहीं है। तो मैंने भाई कृपा मेरे आती थी तो मैं थाने पहुँचा। थाने जिकन पहुँचा तो थाने जाके मेरी कृपान उन्होंने जाने साल ले ली। कृपान के पुलिस को जो है थाना फूक देगी पब्लिक हमारा। और उठो मैं भजा था और सुनी नहीं, सब तो निकलते सुनी कितने। उन्होंने कृपान खोली मेरे को और तुरंत उन्होंने पहुँचता होता था यहाँ से भाग जाओ, हमारी चौकी में आगे एक आदमी छुपा हुआ इसके अंदर, फिर उस थाने को आग लगा देंगे। मैं फिर गया, एक सामने खंडर मकान थी, खंडर मकान में मैं कूद गया।
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ 4-4:30 ਮਿਲਟਰੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲੀ ਕੈਂਪ ਲੈ ਗਈ। ਸ਼ਾਮਲੀ ਕੈਂਪ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਘਰ ਪੂਰਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਪਰੇ ਕਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ प्रशासन उस टाइम कोई उम्मीद नहीं थी, ना कोई सुनाई हुई है, ना कोई कांग्रेस सुनाई हुई है, ना कोई सपा सुनाई हुई है, ना कोई भाजपा सुनाई हुई है। अजय बसपा दे जो सुनाई हुई सारी भाजपा की सुनाई हुई है। योगी जी मैं मिल गया है, योगी जी ने मिल गया है, बाकायदा उन्होंने कहा तो आपको पूरी सुरक्षा, पूरा आपका हिसाब किताब बनेगा, एक बंदा आपका पकड़ा जाएगा पूरी। आप ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ? अब तो उम्मीद तो जागी है। पापा जी बैठे थे ना, पापा जी ने साड़ी हिम्मत दवाई सी कि तुम चलो मैं थोड़े नाल लगा दूंगा पठानपुर दो उन्होंने। मैं अमरजीत सिंह पंबी अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कानपुर तो मैं आज असी लोग परमिंदरजीत सिंह के घर बैठे हैं जी। इन्हों के फादर रछपाल सिंह ये लोग पहले रहते सी जी निराला नगर, निराला नगर नाल ही है जी। उत्थे उस वेले कुल 5-7-10 घर ही सी परिवार सरदारां दे, जिन्हें सब नूं जला दिता गया। उन्होंने ट्रेजरी का मन नहीं पता, लेकिन यह सानी FIR दी मिली है। सरदार रछपाल सिंह नूं तीजी मंजिल तो थले सड़ता गया सी। परमिंदरजीत सिंह जी अज बोलन की हालात नहीं ने, लेकिन लिखित भी सब देंगे बयान। इन्हों के ही मूँह तो कि सामने एक बीरेंद्र सिंह कोई चट्टे वाला आ, उन्हें इन्हों के फादर नूं पुलिस सटिया, और मिश्रा है उन्हें ही कुछ लोगों ने उत्थे गोलियां भी चलाइया, जिन्नी इन्हों की गल तो पता लग रहा है। इस करके हुण इन्हों की FIR भी SIT भी सारी SIT रिपोर्टां की FIR हुई है। उन्हें FIR SIT ने कितने कदम उठाए ने इन्हों के बारे FIR के ये जोड़े हुण 22 मुलजिम गिरफ्तार होए ने, इन्हों जो पता लगेगा सानू इन्हों के। बाकी असीं इन्हों के लिखित फिर SIT देंगे, क्योंकि बोल नहीं सकते इन्हों असीं लिखित इन्हों के जोड़े बयानात ने उत्थे करावांगे। जिस वेले भोगल साहब जी फिर आउणगे उस वेले असीं साडी कमेटी जिहड़ी इत्थे 11 बंदे दी कानपुर गुलाटी जी दी मीडिया प्रभारी कुलवंत सिंह खालसा जी असीं मिल के इहनूं पैरवी दुबारा मैं अपने हाँ जी ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? चौरासी जी पहली तरीक नूं ये सारी बात हुई है ते अपने साढ़े 12 कोई के दरमियान सब पब्लिक है जी 2000 पब्लिक और पब्लिक ने मैं सामान सारे जो ले सारे सामान का काट लिया। और हाँ और मकाना जिन्हें टेंट कटे करके आगू खिलाते। हाँ जी, अब पूरे मकान में बुरी हालत करती थी, तो बारी भी नोच के रह गई। तो ये कंडीशन बहुत है। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ कि पुलिस ने कोई मदद की थी? हाँ जी, पुलिस ने कहीं पुलिस चोर बजाते रहे, कोई मिलिट्री ने बजाया। अगर मिलिट्री 2 मिनट ना आती तो सारा निकलते फिर मिलिट्री जो सरदार से उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जान दी। देखिए, तो मैं प्रसून कुमार एडवोकेट, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और इस कानपुर में जो सिख दंगे हुए थे, जिसको मैं सिख नरसंहार कहता हूँ, इसके लिए श्री कुलदीप सिंह भोगल जी जो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी के, वो मेरे से मिले थे 2017 में और उन्होंने सहयोग करने के लिए कहा था, चूँकि एक लीगल लड़ाई लड़नी थी। और कानपुर में जितने भी हमारे सूचना में लगभग 127 लोग मारे गए थे, लेकिन एक भी किसी भी इंसान की गिरफ़्तारी नहीं हुई थी, किसी भी अपराधी की गिरफ़्तारी नहीं हुई थी। सब लोग छूट गए थे, चूँकि किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने PIL डाली और कि CBI की इंक्वायरी हो या SIT का गठन हो कानपुर मुद्दों को लेके। और 2017 में ये PIL डाली गई थी और 2019 फरवरी में SIT का गठन हुआ। जब SIT बनी, वो 6 महीने के लिए बनी, उसके बाद से SIT के सामने तमाम तरह की मुश्किलात थीं, चूँकि बहुत सारे गवाह उनको ट्रेस नहीं हो रहे थे, बहुत सारे फाइल्स नहीं मिल रहे थे। हम लोगों ने
एक एक थाने जाकर सारे फाइल्स को टटोला कि कहाँ पे फाइल्स हैं, कहाँ पे क्या डिटेल हैं, कौन सी एफआईआर है, किस एफआईआर में किसके किसके नाम हैं, एसआईटी को सहयोग करने का, गवाहों की गवाही करवाने का। कुलदीप सिंह भोगल जी तरह इंडिया में लुधियाना है, चास है, जबलपुर है, मोहाली है, चंडीगढ़ है, जहाँ जहाँ जाना पड़ा वहाँ वहाँ जाके वहाँ से गवाहियाँ करवा के, दिल्ली में गवाहियाँ करवा के मैंने रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट, नानावती कमीशन की रिपोर्ट, वहाँ एसआईटी जो दिल्ली में बनी है उसके पास जाके हम लोगों ने कोशिशें करी कि किसी तरह से यहाँ अपराधियों को पकड़ने की कोई मुहिम चलाई जाए। और ये करते करते लगभग 3 साल बीत गए और 3 साल में एसआईटी बंद पड़े केसों में मुझे आज कहने में खुशी हो रही है कि वो जो बंद पड़े थे मामले, उसमें लगभग 11 मामलों में एसआईटी चार्जशीट करने में कामयाब रही। और हमारे पास 34 लोगों की लिस्ट थी, जो कि आज एसआईटी के पास लगभग 92 लोगों की लिस्ट है जो अपराधी हैं उसमें, जिसमें 22 लोग मर चुके हैं और लगभग 70-71 लोग जो हैं अभी वो अक्यूज़ हैं, जिसमें 22 लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है। हाँ, ये मुझे उम्मीद ही नहीं, चूँकि हम अभी भी लगे हुए हैं कि जब तक हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सारे लोगों की गिरफ्तारियां ना हो जाएं। और जितने बंद पड़े केस हैं उसमें जितने भी लोग हैं जो आज जीवित हैं और जो गवाही देने के लिए तैयार हैं, उनका सहयोग लेके और उन पे भी मुकदमा किया जाएगा जो अभी तक बचे घूम रहे हैं। 22 लोग पकड़े गए हैं, उसमें 302 के भी मामले हैं, 396 के भी मामले हैं। मतलब लेमैन की लैंग्वेज में कहा जाए तो मर्डर के भी केसेस हैं, लूट के केसेस हैं, डकैती के केसेस हैं, ये सारे केसेस हैं जिसमें अपराधी पकड़े गए हैं। और हम मर्डर के केसेस में जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनके लिए स्पेशली हम लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि उन लोगों को तो ज़रूर ही पकड़ा जाए और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। देखिए, ये मिश्रित हैं, बहुत ज़्यादा लोकल हैं और इसमें कोई जाति का बंधन नहीं है, कोई धर्म का बंधन नहीं है। सब धर्मों से सब लोग हैं, कोई पड़ोसी हैं, कोई दूर के हैं। ये एक विचित्र सा नरसंहार था जो आज के डेट में भारत के इतिहास में क्या विश्व के इतिहास में काला दिवस था या काला पीरियड था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े नरसंहार में भी अपराधियों की गिरफ्तारी ना होना, ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।